what was outstanding in all 2 episodes was Babar Ali. These were his episodes. These were so, and Adnan was right there, but Babar Ali just stole the show. मारिया वो तो कुछ मीनिंग थर्ड पार्टी निकली ना, कि उसकी वजह से तो सारा खून खराबा हुआ है। ना वो आती उनके घर, ना वो कुछ कहती, ना वो बिकॉज उसने कहा था ना किसी को नहीं बताना, कुछ करने को दिया, बट क्या करने को दिया, डिस्ट्रक्शन, घर से निकली वो, मीनिंग मर्डर, एवरीथिंग की प्रोटेक्शन के लिए आई है ना। हाँ, नो प्रोटेक्शन के लिए आई है, बट शी कुड कुक्ड अप स्टोरी व्हेन द गाय क्लियरली सेड, अब वो उसको सस्पेक्ट भी कर क्लियरली, तो बेसिकली इस बेचारे का जो कत्ल की जो the reason for this boy dying is Maria, by the way. I mean, finally, yes, you did something, but unfortunately, it was not the gunfight. There's just a lot happening. Popo's dance was a little out of the place, I felt, but उसपे आप उसकी तो हर जगह चर्चा उसका हो रहा है, उस डांस I know, लेकिन I just felt कि it was out of character. लेकिन वो आप लोग मुझे बताएंगे, but needless to say, beautifully shot. कौन सा आउट ऑफ कैरेक्टर? पोपो का डांस. वही तो हाईलाइट था इस एपिसोड का। I'm sure, so glad. मैंने कहा कैरेक्टर आउट ऑफ कैरेक्टर, मैं नहीं डांस पे नहीं कमेंट कर रही, मैं कह रही हूँ वो डांस जो था वो आउट ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज पोपो इतनी सीरियस, इतनी सुलझी हुई, बंदी शुरू हो गई। खैर, that's a different thing. Some people will like it, some people will not. I'm not saying I didn't like it. I think it was also very well shot. And उनका अपना ही गाना था मजाजन का, I remember, but I just felt it was slightly out of character. But otherwise, very beautifully shot and very well translated to us. So for me, I think these two this one I'm going to give a piece पे. And then you see Azan playing the piano. I thought that was beautiful. I mean, just the whole transition. Again, how music translates from one scene to another. So beautiful. Then there was the scene where hospital में आते हैं बिन्यामीन और उसको लेके आता है, और आसिफ के पीछे उसका बेटा है, क्या नाम है उसका, जो शमरेज. And you see Asif in focus, Shamrez in out of focus. And then you suddenly focus goes to Shamrez and he walks right behind Asif and then comes and stands right next to Asif and they both come into focus. Beautiful. It was just so the effect that you wanted for that scene, and वो आगे वो तीन खड़े हुए, लेकिन just the way he did that I thought was just absolutely beautiful. अच्छा, वही वाली बात, मंटो and what's her name, मारिया. I don't get it. अब मारिया जो है, एक तो मंटो को स्पून फीडिंग क्यों करता है हर बंदा, ठीक है, इवन द पुलिस वाला is saying, जब वो आता है उसको बताने के लिए, कहते हैं अब आप घर जाएं, स्लीपिंग पिल्स लें और सो जाएं. Why would a policeman say that to him? फिर घर जाता है, मारिया कहती स्लीपिंग पिल्स ले लो. अरे यार, leave the poor man alone. अगर उसने स्लीपिंग पिल्स लेनी होती वो ले ले. I mean, everyone is spoon feeding this man. फिर वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि लोग, एक बंदा दूसरे बंदे को मार दे, मैं तो एक मच्छर को भी ना मारूं. कहती है अब आप मच्छर को लेके इतना सीरियस ना हो जाए. No, I don't get it. It wasn't even funny because he's saying something very serious. I just feel that you are reducing this poor character to someone that is so ridiculous. मुझे मंटू का डायलॉग कभी समझ नहीं आता. नहीं, this is Maria's dialogue. मंटू ने सही कहा है, उसने कहा कैसे हो सकता है. मैंने जब देखा है, मैं बिलीव नहीं, मैं तो एक मच्छर, बहुत डीप बात है. आगे आप कह रहे हो कि आप मच्छर को लेकर इतना सीरियस ना हो जाए. Seriously? I mean, I to me that, I don't know, there is something off about Maria. I don't know what it is. But now every time she comes on screen, you feel that she's going to say something silly. It's a very sad thing because you've got such a fine actor and you're ruining it. You're ruining her. You're ruining, no, not ruining her. उसने भी सोच समझ के लिया है. अच्छा, फिर मंटू साहब मैं जा रही हूँ. अब आपको नींद आपको नींद ना भी आए तो आप सो जाना. गोली तो दे दी ना. नहीं ना, but I don't get it. I just don't get it. Anyway, that's Maria. It's a issue in writing. Agreed, but what I'm saying is that it's ridiculous the kind of dialogues you've given this woman. Who is this woman? Why the hell is she there? Is she there just to spoon feed this man? Just to mollycoddle him? मंटो आ जाओ, नहीं तुमने किसी को नहीं बताना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, और बैठी हुई है पुलिस स्टेशन में.
So these things जो है ना, they just spoil the whole play for you. फिर वो पुलिस पे शक कर रही है, वो बहुत सही बात कह रहा है, कह रहे आप किसी को ना बताए, कहती है देखो हमको धमकी दे रहे हैं, अरे कहाँ से धमकी दे रहा है, don't get it. Anyway, so this part of it just kills it. There you're going on this high of this play, and then you just go and it just sort of becomes a farce. I really don't know what the then the canteen scene where Mantu is sitting and eating and वो waiter आता है और उससे बात करने लगता है कि तुम्हारे अबू जिंदा हैं, कब्रिस्तान जाते हो तो क्यों? वो सीन का मकसद क्या था? वो सीन क्यों था? तो आप जब एक what I can't understand is chop it यार, cut it out if it makes no sense. If it makes sense आगे जाके, जो शायद हमें अभी नहीं पता, but otherwise आप देखें the whole episode was so powerful कि something drastic is going to happen because this man has been shot. अब इन लोग फिर मारिया आती है उनके घर में, सारा she spills the bean, वो निकल जाते हैं. आपको पता है इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं. And then, ठुस, you make it absolutely ठुस after a while. But I think then of course Babar Ali was just, वो जो लाइनें उसने बोली हैं about the रुखसती of the बेटा, उफ जो उसने वो you felt his pain, you felt it, और वो अपना रोना भी, oh it was so good Babar, you were so fantastic. But हजरत जब उसके पास आता है, what's her name, अपनी मैमल के पास, वो कहता है ना कि मैं अपने अब्बू के साथ क्या उधार टाइम नहीं स्पेंड कर सका, इस साल का मुझे सबसे बड़ा जो गम है, और मुझसे आई डिडंट गेट योर लव, मीनिंग तुम्हारा प्यार नहीं मिला. आई थॉट दैट वाज वेरी दैट लाइन वाज वेरी लवली. आई बिकम सो फॉन्ड ऑफ वो हजरत जो बेचारा खुड्डे लाइन पे मेमल रखती है इसको. But I thought that was such a sweet line. So when there is so much and again people not believing कि इसने फरहाद नाम है इसका, हाँ फरहाद ने किया, कैसे नहीं बिलीव कर रहे भाई? आपको पता है वो फुप्पी कह रही है कि भाई इट इज हिम. सोचें मेरे ज़हन में क्या आ रहा है. हाँ एग्जैक्टली, पप्पो ने खुद करवाया. हाँ, उन्होंने आई विटनेस मंटो को रखा कि जहाँ पे उसकी गाड़ी ऑलरेडी उन्होंने पंक्चर की है, यहाँ खड़ी होती है, वहाँ से हजरत गुजरता होगा, बड़े हजरत. You think she's in cahoots with फरहाद? कुछ भी हो सकता है, लेकिन फरहाद ने तो किया होगा. नहीं, फरहाद ने किया है, वो तो दिखाया था कि he is giving the order. I don't think so. I think Popo is just happy that if she keeps on pushing this girl that side, वो ये वाली शादी नहीं करेगी, या वो ऑटोमेटिकली कहेगी नहीं मैं ये शादी करूंगी. और शादी की मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि अदरवाइज जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे मंटो का मौजूद होना, हो सकता है मिली भी उसके साथ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था. वो मेरी सबसे और था. अब मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये प्लान था, क्योंकि आप इतना है ना कि एक इतना बड़ा शहर है, उसमें एक इंसान की गाड़ी पंक्चर है, वहीं पे सामने मर्डर हुआ है, आई विटनेस भी मंटो है. हो सकता है यार, ये तो देखिए कोइंसिडेंसेस तो 0.0009% चांसेस में से एक है. बट द थिंग इज, देखो उन दोनों का कनेक्शन तो कुछ नहीं है ना. नहीं देखिए पप्पो का, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका मंटो का और हजरत का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता. उसकी गाड़ी है, ये हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस चांसेस तो हैं, वो तो ड्रामा है ना, वो तो आप समझ सकते हैं. मोर बिलीवेबल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अदरवाइज इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता. और उसको पहले ही मार दिया होगा, उधर लाए होंगे ताकि मंटो के सामने ड्रामा करें, उसको लगे. नहीं, I think उनको पता है गवाही देगा. But it's a good thing to he's standing there with a punctured car. It doesn't make sense. नहीं, उसको पहले ही मार दिया होगा और गाड़ी सब कुछ लाके स्टेज किया. नहीं, मंटो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, उसको पंक्चर कर दिया. मंटो ने कहा गाड़ी पंक्चर है, उसी वक्त वहाँ पे हजरत को लाके उन्होंने वो सारा ड्रामा क्या निकाल दिया. I don't think क्योंकि कोइंसिडेंस टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस. इतना कोइंसिडेंट तो ये तो फिर तो वैसे ही बहुत. I think it's a coincidence कि मंटो was just on the same road के by chance. That coincidence, I don't mean that कि आपने उसको स्टेज कराया, वो नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है? उनको कैसे पता कितने बजे कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, उनको क्या पता. चलें, ये तो बहुत ही फार फेच्ड है, लेकिन देखें कुछ पता नहीं. I mean खलील ने लिखा है ड्रामा, अगर वो कह सकता है कि नींद भी ना आ रही हो, सो जाएं, तो आगे कुछ भी कर सकते हैं. So for me, writing always sort of वो हो जाती है, but the play was good, so I will give him a 7 and I'll give Nadeem a 9. कि बाबर अली को ये भी पता है कि हजरत को इसने मारा है. I mean, I think in his mind he's convinced, and he knows that he's the reason for my son's death. Whereas they constantly kept on telling him कि छोड़ दो, इज्जत का सवाल है, दोस्ती हो गई, लेकिन उसने नहीं छोड़ा. And I think Babar Ali just
nailed these 2 episodes. They were so good. I mean, like it's always so heartwarming to see an actor जो इतना meaning like कितने 5 या 6 scenes होंगे ज़्यादा but इतने commandful, इतने लाइनें वो the funeral scene that he did, the scene with Azan on his knees, those 2 scenes just sort of elevated, meaning for me those are Oscar nomination scenes. So I'll give him a 10 for sure. I just felt that देखिए Saima is doing very well, but Saima is doing very well in a flat line. You know, उनका लेजा भी बिल्कुल वैसा ही है. Nothing has, Babar Ali का control. Saima is just going the same, but she is very good. She's beautiful. She's graceful. Everything. I just felt that not her problem or not her fault, but maybe if I was her, I would have fought for not doing the dance. I just felt it was out of character. Not the dance was beautiful and she did it beautifully, but I just felt it was out of character. For that, I'll give her an 8. 8.